علی علیہ السلام کی طاقت اور بہادری کے بارے میں ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں مولا علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بہادری اور طاقت سے اسلام کی بہت سی جنگوں میں کافروں کو قتل کیا اور بڑے سے بڑے دشمن کو ہرایا۔ پیارے دوستو، مولا علی کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 کافروں کا قتل کیا، جن میں 35 کافروں کو سب نے مل کے قتل کیا اور باقی کے 35 کافروں کو مولا علی علیہ السلام نے اکیلے ہی جہنم واصل کیا۔ جنگ بدر کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 25 سال تھی۔ ایک موقع پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، لڑائی کے میدان میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ موت میرے طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کسی بھی پہلوان سے شکست نہیں کھائی۔ مولا علی علیہ السلام کی بہادری کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شامل ہوئے، اس جنگ میں آپ کو کامیابی ہی حاصل ہوئی۔ مولا علی علیہ السلام کی زیادہ تر جنگوں کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، لیکن بہت سی ایسی بھی جنگیں ہیں جن کا ذکر بہت کم ملتا ہے، اور انہی جنگوں میں سے ایک جنگ بیر العلم بھی ہے۔ یہ جنگ مولا علی علیہ السلام نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی۔ مولا علی علیہ السلام کا مقابلہ ایک بار ایک جنوں کے سردار اور اس کی فوج سے ہوا۔ یہاں پر مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ جناتوں سے ہونا تھا۔ اس جنگ میں مولا علی علیہ السلام نے 20,000 جنوں کو قتل کر دیا تھا اور بہت سے جنوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک اجاڑ بستی سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا، اسے وادی ارزا کہتے ہیں، اور اس جگہ پہ ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں وہ جنات رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر پائے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طبائی یومانی گزرا تھا، اور ان کے 10,000 سپاہیوں کو جناتوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قافلہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ آپ میں سے 10 لوگ جائیں اور اس کنویں سے پانی نکال کر لائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے 10 صحابہ اٹھے اور پانی نکالنے کے لیے اس کنویں کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی صحابہ اس کنویں کے پاس پہنچے، ویسے ہی ایک خوفناک جن اس کنویں سے باہر نکلا، اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہونکار بھری جس سے سارے جنگل میں آگ لگ گئی۔ ایسا خوفناک منظر دیکھ کر تمام صحابی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ابو العاص صحابی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، اور وہ آگے بڑھنے لگے، اور تھوڑی دیر میں ہی وہ شہید ہو گئے۔ اسی بیچ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علی ابن طالب کو بھیجیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا مولا علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی اس کنویں کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمانے لگے، اے میرے اللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی علی کو کامیابی عطا فرما۔ اس کے بعد جیسے ہی مولا علی علیہ السلام اس کنویں کے پاس پہنچے، پھر وہی خوفناک جن باہر آیا اور ہنکار بھرنے لگا۔ یہ دیکھ کر شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی ابن طالب ہوں، میرا عمل جناتوں کو قابو میں کرنا ہے،
ये सुनकर उस जिन ने मौला अली अलैहिस्सलाम पर एक जोरदार हमला किया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फ़िकार से उस जिन को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर उठना शुरू हो गया। फिर देखते ही देखते उस कुएं से खौफनाक और खतरनाक चेहरे नमूदार होने लगे। ये देखते ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में बदलने लगा। और इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के ऊपर जाकर खड़े हो गए और कुएं में पानी निकालने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को बाहर वापस फेंक दिया गया। ये देखकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस बर्तन को दोबारा उस कुएं में डाला, लेकिन फिर से वही हुआ, बर्तन वापस फेंक दिया गया। इतना देखकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, जो भी मुकाबला करना चाहे बाहर आ जाए। ये सुनकर एक जिन बाहर निकला और निकलते ही मौला अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके वार से बचते हुए उसको भी कत्ल कर डाला और बर्तन को फिर से कुएं में डाल दिया, लेकिन इस बार भी वही हुआ, बर्तन फिर से वापस आ गया। इस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम ने बर्तन को 3 बार कुएं में डाला और तीनों बार जिन्नातों ने उस बर्तन को बाहर फेंक दिया। आखिरकार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कि मैं अपनी कमर में रस्सी बांध देता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम लोग इस रस्सी को पकड़े रहना। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सहाबा ने उस रस्सी को पकड़ लिया और मौला अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के अंदर उतर गए, लेकिन वो रस्सी टूट गई और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस कुएं में जा गिरे। और इसके बाद कुएं से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और फिर थोड़ी देर के बाद कुएं से ये सदा आने लगी, या अली अलैहिस्सलाम हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, अपनी खैर चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल करो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने सबको कलमा पढ़ाया और वो सब के सब मुसलमान हो गए। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन तमाम जिन्नों को कुएं से बाहर निकाला और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने वाली जिन्नातों में से एक जिन को उनका सरदार बना दिया, जिसका नाम जाफर जिन था। प्यारे दोस्तों, तारीख में मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आवाज़ बुलंद की कि कोई है मदद करने वाला, तो करबला के मैदान में फरिश्तों के साथ जिन्नात भी आए थे। उन जिन्नातों का सरदार यही जाफर जिन था, जो अपने पूरे लश्कर के साथ वहां पहुंचा था। वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहने लगा, या मौला, अगर आप इजाज़त दें तो अभी इन सारे दुश्मनों को ख़त्म कर दूं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जाफर जिन को ऐसा करने से मना कर दिया। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में अक्सर फाके होते थे। 3-3 दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी से इफ्तार करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई थी कि सुनकर हैरानी होती है। जंगे उहद और जंगे बदर के बाद अल्लाह की करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे और वहीं दूसरी तरफ कुफ्फार कमज़ोर पड़ने लगे थे। इसलिए कुफ्फार चाहते थे कि मुसलमानों का नामो निशान मिटा दिया जाए, मुसलमानों के वजूद को ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए अबू सुफियान और अरब के बड़े बड़े बहादुरों ने आपस में सुलह कर ली। इन्हीं बहादुरों में अरब का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान, जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, वो भी इनमें शामिल हो गया। अम्र बिन मरहब ने सैकड़ों जंगें लड़ी और वो इतना ताकतवर था कि वो अपने एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता और ज़िबा करता चला जाता था। जनवरी 627 ईस्वी में तमाम मुशरिकों ने मदीने पर हमला करने का फैसला किया। इस बात की खबर जब हमारे प्यारे आका
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा को बुलाया और उनसे फरमाया कि हमारी एक तरफ अरब के तमाम मुशरिक और कुफ्फार हैं और वहीं दूसरी तरफ हम मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, बस अब अल्लाह की तरफ से ही फैसला होगा। तमाम सहाबा ये सोचने लगे कि इतनी बड़ी फौज का हम कैसे मुकाबला करेंगे। इतने में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने को पहाड़ों ने 3 तरफ से घेर रखा है और सिर्फ एक ही तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो कोई भी कुफार खुले तौर पर मदीने पर हमला नहीं कर सकेगा। सभी लोगों को हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मशवरा पसंद आया और फिर सभी लोग खंदक खोदने में लग गए। लेकिन इस वक्त सभी सहाबा के हालात बहुत ख़राब थे, भूखे प्यासे मेहनत करते रहे और इस खंदक को खोदने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने अपने हाथ मुबारक से कुदाल चलाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी सहाबा इकराम कई दिनों के भूखे थे, लेकिन अपने पेटों में पत्थर बांधकर खंदक खोदते रहे। आखिरकार लगभग 1 महीने की मेहनत मशक्कत के बाद 6 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोद ली गई। इसके बाद जैसे ही अबू सुफियान और पहलवान अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब पहुंचे तो उन्होंने मदीने के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी खंदक खुदी हुई है। ये देखकर वो हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर इन लोगों ने इतनी बड़ी खंदक कैसे खोदी और हम अब मदीने पर हमला कैसे करेंगे। 6 हफ्तों तक मदीने के बाहर ये लोग बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा, ये तो मेरी तौहीन है, और इतना कहकर उसने अपना घोड़ा खंदक में उतार दिया और जैसे तैसे करके खंदक को पार कर लिया और मदीने में दाखिल हो गया। मदीने में पहुंचकर चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो और या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। ये सुनकर तमाम मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका लीं और खामोश रहे। इतने में हैदर कर्रार हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, इससे लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता भी है सामने कौन है? ये अम्र है, तुम इसे टक्कर नहीं दे सकते, ये बहुत ताकतवर है और अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 23 साल थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, कहाँ है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो और कहते हो कि अगर शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो जन्नत में जाना चाहता हो? प्यारे दोस्तों, यूँ तो मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें हजरत तलहा जैसे बहादुर भी बैठे थे, लेकिन सब के सब खामोश थे। इतने में मौला अली अलैहिस्सलाम फिर से उठे और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए, इस जालिम का मुंह मैं बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा, अली बैठ जाओ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया, कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करेगा? ये सुनकर सब ने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो कि एक हाथ में ऊँटनी के बच्चे को पकड़ता है और दूसरे हाथ से लश्कर को काटता चला जाता है। ये अकेला 1000 लोगों से लड़ सकता है, आखिर कौन इसका मुकाबला करेगा? इतने में तीसरी मर्तबा हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उठाया और कहने लगे कि ऐ मेरे आका, आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस काफिर को जहन्नम वासिल करूंगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को इजाज़त दे दी। इजाज़त मिलते ही हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म
लोहे से ढका हुआ था, यानी कि उसकी पूरी पोशाक लोहे की बनी हुई थी, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की थी। जब उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने आता हुआ देखा तो कहने लगा, तेरा क्या नाम है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा नाम अली इब्न तालिब इब्न अब्दुल मुत्तलिब है। इतना सुनकर अम्र बिन अब्द वुद ने कहा कि ऐ अली, तुम यहाँ पर क्यों मरने आए हो? तो ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं हैदर कर्रार हूँ और मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दरअसल दोस्तों, हैदर के माना होते हैं शेर और कर्रार का मतलब होता है पलट पलट कर हमला करने वाला। इसलिए आप अलैहिस्सलाम का लक़ब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर, यानी आप पलट पलट कर वार करते थे। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा कि जैसे तू आया है वैसे ही वापस लौट जा। मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता, जा मैं तुझसे नहीं लड़ता, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था। मौला अली अलैहिस्सलाम कहने लगे, बहाने ना कर, तेरा बाप मेरे बाप का दोस्त था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा दोस्त वही है जो मोहम्मद अरबी का दोस्त है। सुभान अल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने पहलवानों की बड़ी बातें सुनी हैं। फिर फरमाने लगे, मैंने सुना है कि तू दो बातों में से एक बात कबूल कर लिया करता है। वो बोला, हाँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी भी दो बातें हैं, या तो इस्लाम कबूल कर ले और या फिर मैदान में आ जा। अम्र अब्द वुद बोला, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर सामने आ जा और मुझसे मुकाबला कर। ये सुनकर अम्र को गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके वार को अपने ढाल से रोक लिया। फिर उसने आप पर 3 वार किए, आपने उसके तीनों वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली अलैहिस्सलाम पर एक जोरदार वार किया, जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और आपके सर पर एक जख्म भी आया और उसका निशान सारी जिंदगी रहा। जब अम्र बिन अब्द वुद ने हमला कर लिया तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बिन बताए हमला नहीं करता, तूने हमला कर लिया, अब मेरी बारी है, जरा संभल के रहना। मैं पुश्त पे वार नहीं करता, मैं बता बता कर वार करता हूँ। मैं अल्लाह का भी शेर हूँ और रसूल अल्लाह का भी शेर हूँ। सुभान अल्लाह। मौला अली ने एक ज़रब लगाई, दोनों लोगों में इतनी गुत्थम गुत्था हुई कि बेशुमार रेत उड़ने लगी और इतनी रेत उड़ी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद जब रेत छटी तो सबने देखा कि अम्र बिन अब्द वुद जमीन पे पड़ा था, उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और मौला अली अलैहिस्सलाम उसकी छाती पे खड़े थे और कहने लगे कि भला तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अली की एक ज़रब सारी कायनात की नफली इबादतों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक ही बंदे को काटा था, लेकिन दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खंदक को पार करके अंदर आ सके। कुफ़ार मुशरिकीन 1 महीने तक वहाँ पर खेमे लगाए रहे। फिर अल्लाह ताला ने हवा भेजी, ठंडी हवाएं चली, आंधियां आईं, खेमे उखड़ गए, जानवर अपनी रस्सी तोड़कर भाग गए। अबू सुफियान कहने लगा, हमें यहाँ 1 महीना हो गया है, मदीने वाली हमारे काबू में नहीं आए और ना ही किसी मसले का हल हो सका। इसलिए अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ से जाता हूँ। रिवायात में आता है कि अबू सुफियान अपने ऊँट पे इतनी तेजी से बैठा कि उसे याद भी नहीं रहा कि उसका ऊँट कहाँ बंधा था। वो ऊँट को उठाता लेकिन वो उठ नहीं रहा था। किसी ने कहा, ऐ अबू सुफियान, तुझे भागने की इतनी जल्दी है कि तूने ऊँट की रस्सी को भी नहीं खोला। फिर उसने तलवार से रस्सी काटी और वो वहां से भाग गया। जब वो वहां से भागा तो सारे लोग उसके पीछे भाग गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मेरे रब करीम ने बिना जंग के हमें फतह अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों,
मौला अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का एक और वाक़या रिवायात में मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुँचे। यहूदी उस किले में जमा होकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को ख़त्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल सुबह ये इस्लामी परचम मैं उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबा रात भर सो न सके। वो इस सोच में डूबे रहे कि सुबह ये इस्लामी परचम आखिर किसके हाथ में होगा। सबका दिल मचल रहा था कि काश वो झंडा मेरे हाथ में हो। इसके बाद सुबह हुई और सब सहाबा इकराम जमा हुए। फिर से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर नज़र डाली। उस मजमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला अली अलैहिस्सलाम नज़र नहीं आए। ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ हैं? उनमें से किसी ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलाम की आंखों में आशूब है, वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली को बुलाओ। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आपको तेज़ बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन आपकी आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी परचम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों में थमा दिया और फरमाया, ऐ अली, अल्लाह तुम्हारे हाथ फतह रखे। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी झंडा लेकर उसी हालत में यहूदियों के किले की जानिब चल दिए। जब सहाबा इकराम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो उनमें भी जोश भर गया। मौला अली अलैहिस्सलाम जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुँचे तो आपने देखा कि उस किले का जो सबसे ख़ास दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा और भारी है और बंद है। वो दरवाज़ा इतना भारी था कि 40 लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलवार चलाना शुरू की और दूसरे हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ दिया और सहाबा इकराम से फरमाया कि आप सब लोग किले के अंदर दाखिल हो जाओ। और आप अलैहिस्सलाम ने उस भारी भरकम दरवाजे को उस वक्त तक उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबा किले के अंदर दाखिल ना हो गए। फिर जब तमाम सहाबा इकराम दाखिल हो गए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस दरवाजे को इतनी दूर फेंका कि वो कई गज दूर जाकर गिरा और इसके साथ ही मुसलमानों ने वो किला फतह कर लिया। प्यारे दोस्तों, ये थी ताकत मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे कि तभी एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, मौला अली अलैहिस्सलाम, मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ मगर मेरा रास्ता बड़ा ही ख़तरनाक है। मुझे शेर और जंगली जानवरों का डर है। या अली, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। ये सुनकर मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक में जो मुबारक अंगूठी पहनी हुई थी वो उतार कर उस शख्स को दे दी और फिर फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, जब भी तुम्हारे सफ़र के दौरान कोई दरिंदा या शेर या कोई जंगली जानवर आ जाए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने तालिब की है। उस शख्स ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा उसने वो अंगूठी ले ली। इसके बाद वो शख्स वो अंगूठी को लेकर सफ़र पर रवाना हो गया। उसके बाद जिस रास्ते से वो जाने वाला था उसमें एक जंगल पड़ता था। सफ़र के दौरान जब उसका गुज़र उस जंगल से हुआ तो अचानक उसके सामने एक खतरनाक शेर आ गया। जैसे ही उस शख्स ने शेर को देखा
تو وہ گھبرا گیا، لیکن پھر اسے مولا علی علیہ السلام کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے وہ انگوٹھی نکال لی اور اس مبارک انگوٹھی کو نکال کر اس شیر کے سامنے کر دی، اور وہ شخص کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی امیر المومنین مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پیارے دوستو، شیر نے جب اس کی یہ بات سنی اور مولا علی علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز کی، اور پھر اس شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا، اس کے بعد آواز لگائی، پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کیا اور زور سے دہاڑنے لگا۔ اس کے بعد وہ شیر دوڑتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ یہ شخص اس مبارک انگوٹھی کی یہ کرامات دیکھ کر حیران تھا، اور شیر کا وہ معاملہ بھی اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ شیر نے دائیں اور بائیں، اوپر اور نیچے منہ کر کے آواز کیوں لگائی، اور وہ اس مبارک انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیوں گیا؟ لیکن اس شخص کو سفر پر بھی جانا تھا، لہذا وہ سفر پر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی خطرہ اس کو راستے میں نظر نہیں آیا، اور اس نے بڑے ہی آرام سے اپنے سفر کا راستہ طے کر لیا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ اپنے سفر سے واپس آیا تب بھی اسے راستے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ سفر سے واپس آنے کے بعد وہی شخص مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا، اور اس نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے اپنے سفر کا ماجرا سنایا، اور اس نے مولا علی علیہ السلام کو اس کے سفر میں پیش آنے والے سارے واقعات بیان کیے۔ اس شخص کی بات سن کر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس شیر نے اوپر نیچے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے جو آوازیں لگائی تھیں اس میں اس نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضور، مجھے بالکل بھی نہیں پتا شیر نے کیا کہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شیر نے جب آسمان کی جانب اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا، اور اس نے جب زمین کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا، اور اس نے جب مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبویا، میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں پر میری شکایت حضرت مولا علی علیہ السلام سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ سلام ہو حیدر قرار مولا علی علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت پر۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعات مولا علی علیہ السلام کی بہادری کے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعات ضرور پسند آئے ہوں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ کریں۔